Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 1, part 2 of Environmental Studies. Topics to be covered in this session are the field and interdisciplinary nature of environmental science, the importance of natural resources and ecosystem services, the scientific method and the process of science, some pressures on the global environment, concepts of sustainability and sustainable development. So I've already told you in the part 1 of this session that we rely on natural resources and in industrial development and intensive agriculture that provides the goods for our increasingly consumer oriented society uses up large amount of natural resources. अब मैंने आपको बताया कि different renewable resources और non renewable resources हम अपने accordingly ने use कर रहे हैं. Renewable natural resources includes sunlight, wind energy, wave energy, geothermal energy, fresh water, forest products, agricultural crops and soils. वहीं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स. जैसा कि मैंने आपको बताया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं. दे विल बी एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर इफ वी कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट देम लाइक दिस एंड दे विल नॉट बी लेफ्ट फॉर आवर सब्सिक्वेंट जनरेशंस. वहीं नेचुरल रिसोर्सेज are those which can be used but can be regenerated by natural processes such as regrowth or rainfall. But these two will be depleted if we continue to use them faster than nature can replace them. So we try to use them judiciously and with proper use so that they'll be left for our subsequent generations और इस तरीके की problems ना आए. क्योंकि आज भी हम देख पा रहे हैं कि कितने multiple effects दिखाई दे रहे हैं इन सब environmental degradation के, which are the result from routine human activities which must be appreciated by each one of us if it is to provide us with the resources we need in the long term. Our natural resources can be compared with money in a bank. If we use it rapidly, the capital will be reduced to zero. On the other hand, if we use them only as interest, it can sustain us over the long term. This is called sustainable utilization of resources, or we call it as sustainable development. So now we will study more about it, how we rely on ecological system or ecosystem. नेचुरल रिसोर्सेज आर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय नेचर. आप जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज तो वो होते हैं जो गुड्स नेचर हमें प्रोवाइड करती है और वहीं से प्रोड्यूस होते हैं. अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हमें सर्विसेज भी देते हैं. इनफैक्ट गुड्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ में नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारी अर्थ के वो हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. इकोसिस्टम की सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है नेचुरल सर्विसेज की, नेचुरल रिसोर्सेज जो डेली बेसिस पे नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं वो उनकी सर्विसेज ही तो हैं. जैसे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेटिंग क्लाइमेट, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, रिसीविंग एंड रीसाइक्लिंग वेस्ट, जो अपने आप ही नॉर्मल फंक्शनिंग चलती जा रही है हमारे इकोसिस्टम में. So this is all about the services that are provided to us by the Earth's natural resources. So Earth, we totally rely on these ecosystem services and the products and the goods जो हमें nature provide करता है. ये goods और services हम totally इन पर rely करते हैं, and I think we will not be able to continue our survival or continue our living if we will not do like this. So we live in a world in which natural resources are limited. This is the reason कि हम जहाँ रहते हैं वो लिमिटेड है. वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज कहने को तो बहुत बड़ी है लेकिन इसके सिस्टम्स और इसके रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है. इफ विल नॉट यूज देम जुडिशियसली दे विल वैनिश वन डे. एनवायरनमेंट इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट. अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो ये कोई सिंगल सब्जेक्ट नहीं है. इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट्स जिसमें हम बोथ कंपोनेंट्स ऑफ साइंस एंड सोशल स्टडीज दोनों को ही इंक्लूड करते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी एरियाज कहीं ना कहीं से अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को, वो हम सब चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं. और इट इज़ नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया. We need to understand these different aspects, or we can say different components, in order to understand the scope of environmental studies.
Thus we can say जो scope है environmental studies का extremely wide and covers some aspects of nearly every major discipline. Because now I would like to tell you about the natural resources, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं. जैसा कि हम बात कर रहे थे इकोसिस्टम की सर्विसेज और गुड्स की, हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं और इनफैक्ट हम टोटली उन पर रिलाई करते हैं. बट एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एक लिमिट में है. चाहे अर्थ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन रिसोर्सेज और सिस्टम वो लिमिटेड है. वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, ऑयल, द प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, grasslands, oceans and from agriculture and livestock are all a part of our life support system. Without them, life itself would be impossible. As we keep increasing in numbers and the quantity of resources each of us uses also increases, the earth's resources base must inevitably shrink. So the earth cannot be expected to sustain this expanding level of utilization of resources. जिस तरीके से हम इनको यूज कर रहे हैं आज, जो भी हमारे पास सर्विसेज और गुड्स अवेलेबल हैं, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट है, और लेकिन हम जिस तरीके से इनका क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज जितनी तेजी से हम यूज कर रहे हैं, द अर्थ कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू सस्टेन दिस एक्सपैंडिंग लेवल. अर्थ इतने लेवल को नहीं टॉलरेट कर पाएगी, नहीं सस्टेन कर पाएगी. Added to this is misuse of resources, जो यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स. साथ साथ में मिस यूज भी हो रहा है रिसोर्सेज का. आप जानते हैं वी वेस्ट और पोल्यूट लार्ज अमाउंट्स ऑफ नेचर्स क्लीन वाटर. बहुत सारा नेचर का क्लीन वाटर भी हम वेस्ट कर देते हैं. वी क्रिएट मोर एंड मोर मटीरियल लाइक प्लास्टिक दैट वी डिस्कार्ड आफ्टर अ सिंगल यूज, जो हम सिंगल यूज के बाद ही वेस्ट हो जाता है और उसका कोई यूज नहीं है, उसको भी हम तो और ज्यादा बढ़ा रहे हैं. तो इन ऑल हम ये कह सकते हैं मिस यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का. जो ज्यादा यूजेज हो रही है, इंक्रीज यूजेज हो रही है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मिस यूज भी हो रहा है, वो हमारी अर्थ को टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा. एंड वी वेस्ट कॉलोसल अमाउंट्स ऑफ फूड. वी क्रिएट मोर एंड मोर मटीरियल लाइक प्लास्टिक दैट वी डिस्कार्ड आफ्टर सिंगल यूज. और जैसा मैंने आपको बताया कि हम कॉलोसल अमाउंट ऑफ फूड को उसे भी डिस्कार्ड कर देते हैं एज गार्बेज. जो हमारे नेचर ने गुड्स प्रोवाइड किए हैं उसे भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्रिएट सॉलिड वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर डिस्कार्डेड एज वेल एज केमिकल्स दैट फ्लो एज लिक्विड वेस्ट एंड पोल्यूट वाटर एंड गैसेस दैट पोल्यूट द एयर. इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वेस्ट cannot be managed by natural resources. अगर इसी तरीके से हम natural resources को यूज करते रहे तो we cannot increasing amount of this waste वो मैनेज नहीं हो पाएगा इन नेचुरल प्रोसेसेस से. These accumulate in our environment, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे. They will accumulate in the environment and leading to the variety of diseases and other adverse environmental impacts which seriously affect all our lives. तो इन ऑल हम कह सकते हैं कि हम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार इन्वायरमेंट में ये सब चीजें एक्यूमुलेट होनी शुरू होगी, जो गैसेस हैं जो पल्यूट कर रही हैं, वाटर में जो लिक्विड वेस्ट जो अगर पल्यूट कर रहा है वाटर को, तो इन ऑल अगर हम देखें तो इनकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस होंगे और एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा विच सीरियसली अफेक्ट ऑल आवर लाइव्स ओनली. एयर पोल्यूशन की वजह से आप जानते हैं कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाते हैं. वाटर पोल्यूशन की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस हो जाते हैं. मेनी पोल्यूटेंट्स आर नोन टू कॉज कैंसर आल्सो. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम इकोसिस्टम सर्विसेज पे जो डिपेंड करते हैं, लेकिन हम इन्हें डिग्रेड कर रहे हैं. इन इकोसिस्टम की सर्विसेज को हम डिप्लीट कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. हैबिटेट हम डिफॉरेस्टेशन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल एनिमल्स जो हैं और प्लांट्स हैं उनका हम हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं. जो मैंने अभी आपको बताया कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ गैसेस जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं और ये एक्यूमुलेट हो जाएंगी एनवायरनमेंट में, और जिसकी वजह से इनऑल हमें ही उसका नुकसान होगा, बिकॉज दे विल लीड टू वैरायटी ऑफ डिजीजेस एंड अदर एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स. तो इसीलिए हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि हम डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम, या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम वहाँ पर क्रिएट करते हैं जब हम अपने फॉरेस्ट कवर को लूज कर रहे हैं, बिकॉज नॉट ओनली डिप्लीट्स द फॉरेस्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज सच एज टिम्बर एंड अदर नॉन वुड प्रोडक्ट्स,
साथ साथ में वाटर रिसोर्सेज को भी ये अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक इंटैक्ट नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है, जो होल्ड करता है वाटर को एंड रिलीजेस इट स्लोली। डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स भी आ जाते हैं मॉनसून्स में एंड ड्राई रिवर्स हो जाती हैं बाद में इफ द रेन्स आर ओवर। तो इंक्रीज ह्यूमन एफ्लुएंस हैज इंटेंसिफाइड डिग्रेडेशन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हम इतना ह्यूमन का एफ्लुएंस जो है ये इंक्रीज होता जा रहा है, इसकी वजह से डिग्रेडेशन बहुत इंटेंसिफाई होता जा रहा है। We need to improve this situation, and improving this situation will only happen if each of us begin to take actions in our daily lives that will help preserve our environmental resources. We cannot expect government alone to manage the safeguarding of the environment, nor can we expect other people to prevent environmental damage. We need to do it ourselves. It is a responsibility that each of us must take on as one's own. So हम ये नहीं कह सकते कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम गवर्नमेंट से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेफ गार्ड करें एनवायरनमेंट को, लेकिन सबसे पहले ड्यूटी हमारी ही है कि हम अपने एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें। सिर्फ गवर्नमेंट अकेले हम एक्सपेक्ट करें कि वो सेफ गार्ड करेगी एनवायरनमेंट को, ये नहीं हो सकता। नॉर कैन वी एक्सपेक्ट अदर पीपल टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डैमेज। हमें खुद ही करना पड़ेगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सबको लेनी चाहिए एज आवर ओन। ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से एम्पलीफाइड जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इन इम्पैक्ट्स को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर रही है और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो हमें कंट्रोल करने होंगे। इनके 6.9 बिलियन ह्यूमंस, देयर आर ओवर 6.9 बिलियन ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो इन नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि इतने ह्यूमंस हैं तो उन सबको खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज भी चाहिए, पेट्रोल एंड कोल एंड एवरीथिंग दे रिक्वायर। तो इसीलिए एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हम इनकी नीड्स तो पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर इनका एडवर्स इफेक्ट देखें तो हम अपने ही एनवायरनमेंट को टोटली डिग्रेड कर रहे हैं। इनके बाद जो मॉडर्न सोसाइटीज जो है वो ये सोच रही हैं कि टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगी तो हमें इन रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से। इनके लिए हम जो मोर और ज़्यादा फूड ग्रो कर रहे हैं बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, developing better strains of domestic animals and crops, irrigating farmland through mega dams in developing industry, they lead to rapid economic growth. The ill effects of this type of development led to environmental degradation. तो अगर हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद क्रॉप्स की, लाइफ स्टॉक की नीड्स पूरी कर पा रहे हैं, स्टेबल फूड सप्लाई दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो अर्बनाइज्ड सोसाइटी जो है वहाँ पर फॉसिल फ्यूल से पावर्ड अप हो गई है, ऑयल, गैस और कोल से। सैनिटेशन और मेडिसिन की भी कोई कमी नहीं है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन जो इसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, सब चीजें तो पूरी हो रही हैं और इट इज लीडिंग टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो, बट इन इफेक्ट को अगर हम देखें इस टाइप की डेवलपमेंट का तो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रही है हमारा एनवायरनमेंट। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसे ठीक से समझ सकें इस नीड को और इस पर कुछ वर्क करें, जो एक किसी इंसान की ड्यूटी नहीं है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, which all of us must take as one's own. रिसोर्स कंजम्पशन एक्सर्ट्स प्रेशर। जितना रिसोर्स का कंजम्पशन हो रहा है इससे प्रेशर भी आपको पता है कि बहुत बढ़ रहा है। एक्सप्लॉयटेशन एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। जिस तरीके से हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं रिसोर्सेज की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और गैरेट हार्डिन्स अपनी ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में कहते हैं कि अनरेगुलेटेड एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है पब्लिक रिसोर्सेज का, दे लीड टू डिप्लीशन एंड डैमेज ऑफ एयर। तो जो भी हम सॉइल, एयर, वाटर को भी, चाहे ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, फिर भी हम इनको अनरेगुलेटेड मैनर में और एक्सप्लॉयट कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को, तो ये डिप्लीट कर देंगे, डैमेज कर देंगे हमारी अर्थ को। अगर हम देखें तो इससे हम ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि वी टोटली रिलाई ऑन दिस नेचुरल रिसोर्सेज। और अगर ये नहीं रहे तो आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू आवर सर्वाइवल। Resources users are motivated by self-interest. They increase use until the resource is gone.
तो जो रिसोर्सेज यूजर्स हैं वो मोटिवेट करें बाय सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और इंक्रीज हो रहा है उनका यूज, जब तक ये रिसोर्सेज खत्म नहीं हो जाते वो इंक्रीज हो रहा है उनका बहुत यूज, और इनके लिए हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का क्या हुआ, प्राइवेट ओनरशिप्स का क्या हुआ, कोई आंसर नहीं मिल पाया, और इनसे प्रेशर जो है वो दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो प्राइवेट ओनर्स हैं या रिसोर्स यूजर्स हैं वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं बाय सेल्फ इंटरेस्ट। कार्स आजकल आप देखते हैं कि एक ही उसमें जा रहा है एक इंडिविजुअल, और वो कार पूरी जा रही है, जिसके लिए ये नहीं मालूम कि कितना पेट्रोल यूज हो रहा है और कितना वेस्टेज हो रहा है उस पेट्रोल का। अगर हम वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, हम मोटिवेट हो रहे हैं रिसोर्स यूजिंग के लिए, और वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड वी विल नॉट बी एबल टू रियलाइज दिस फैक्ट। और जिस दिन रिसोर्स खत्म हो जाएंगे शायद उस दिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स भी देखे गए हैं। एफ्लुएंस जो है वो उसकी वजह से कंजम्पशन कितना बड़ा है वो आप देख सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में। इसके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स भी देखे गए हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ पर्सन और पॉपुलेशन, एरिया ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड प्लस वाटर एंड सप्लाइंग रॉ रिसोर्सेज एंड डिस्पोजिंग रिसाइकिल वेस्ट। जो रिच नेशंस में लोग हैं उनका तो और भी ज्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स देखे गए हैं कि जिस तेजी से वो इन रिसोर्सेज को, इन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड और वाटर को यूज कर रहे हैं, इसे तो शायद बहुत ही जल्द ऐसा देखने को मिलेगा कि जब कुछ भी नहीं बच पाएगा ऑन आवर अर्थ। इफ एवरीवन कंज्यूम द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज द यूएस डूज, we would need 4.5 hours। जिस तेजी से यूएस इस टाइम इस्तेमाल कर रही है इन रिसोर्सेज को, जिस तरीके से यूएस आज इन रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही है, आई थिंक वी वुड नीड 4.5 अर्थ फॉर दैट। और हमारे पास सिर्फ एक ही अर्थ है और जितनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं शायद 4.5 अर्थ की जरूरत पड़ेगी। सो वी नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट दैट कि हमें किस तरीके से यूज करना है, और इसके बारे में अभी हम और जानेंगे कि एक्चुअली अवेयरनेस कितनी जगानी जरूरी है। और नेचर के बारे में मैं आपको और बताऊंगी, इनकी प्रोडक्टिव वैल्यू के बारे में, एस्थेटिक रिक्रिएशनल वैल्यू के बारे में, उनकी नेचर की ब्यूटी के बारे में, और ऑप्शन वैल्यूज ऑफ नेचर के बारे में, और अबाउट द नीड फॉर द पब्लिक अवेयरनेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन एनवायरनमेंट। आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द next part of this session, but that's all for now. Thank you, thanks a lot. Happy learning, we learning.